So we will start a 13th chapter according to the syllabus. So in 13th chapter, that is a geography, that is India location, geographical structure and physiography part 1. This is also we have learned this chapter in 8th standard or in 7th standard also, and this is part of that only. And in this chapter little bit information given in the depth, that is nothing more. This is a very small chapter, and you know all about that, what is longitude, what is latitude, what is tropic of Cancer, right? So this chapter is related that, and after that we will take again one chapter of history, and then after we will see the 10 chapter we have already complete. After this and one chapter of history, we will complete our 10 chapter, that is semester 1. Then after we will see we have to take the rapid revision, or else we have to go further, that we will see. Okay students, so today we will start, that is chapter 13. अभी आपको इसके बारे में ऑलमोस्ट पता ही होगा, मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं होगी. दैट लोकेशन, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा चैप्टर हमने ऑलमोस्ट 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ लिया है, और 8th स्टैंडर्ड में भी इसका थोड़ा सा पढ़ा था. और ये चैप्टर भी बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है. सो इंडिया आपको पता ही एक यूनिक एंड कल्चरल कंट्री है, ठीक है. India holds a unique position among the countries of the world. India is having a largest democracy and its culture is one of the oldest. It is the largest democracy in the world. The coordinate attitude of our culture has not discarded any religion, race of people, but accepted the wholeheartedly. Thus, impartiality towards the whole religion, people and races in the peculiar characteristic of India. That is why India became a cultural confluence. Even though many natural and man-made induced disasters have taken in India and it is constitutively continue her progress, the geographical conditions have contributed immensely towards the development and progress of Indian culture. So you know that कि इंडिया जो है उसने बहुत अच्छी पोजीशन ले रखी है अपने कंट्री में. आई थिंक इट इज़ होल्ड एरिया वाइज 7th number in area wise in the whole world, 7th position. So इंडिया क्या है, that you know that it is a secular democracy country, right? जहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स ले लो, डिफरेंट रिलीजन्स ले लो, हर एक ने अपनी पोजीशन है होल्ड करके रखी है. और किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, वी कैन रेज आवर हैंड इजीली, राइट? और जियोग्राफिकल कंडीशंस भी जो है, कभी कभार होता है कि नेचुरल डिज़ास्टर वगैरह होते हैं तो उसमें बहुत ही नुकसान भी होता है, बट फिर भी इंडिया जो है वो धीरे धीरे क्या कर रही है कि अपनी पोजीशन होल्ड कर रही है, इवन दो डेवलपमेंट में भी ऑल्सो. सो लोकेशन वाइज लो, कल्चरल वाइज लो या स्ट्रक्चर वाइज लो, इंडिया ने हर एक जगह पे अपना क्या पोजीशन रखा ही है. Geographically, India is the northern hemisphere. It extends up to the southern part of Asian continent, and the mainland of India extends 8 degree to 4 to 37.6 to north, and from 68.7 to 97.25 east longitude. That we have already learned in the 7th standard. Also, we have the chapter of physiography of India. That Tropic of Cancer 23.5 north latitude divides the country into two parts, that you know that southern part and northern part. The northern part is spread more in the east-west direction. The large plains Himalaya mountain systems are located in this part. So Tropic of Cancer has a triangular shape and taper towards the south. This is basically part of Peninsular Plateau. It includes the eastern plains, narrow western coastal plains. The latitude the latitudinal as well as longitudinal
sorry. So the second paragraph, the latitudinal and the longitudinal extents of India almost equal, which is 30 degree, but actually the length between Kashmir and Kanyakumari is 30 to 14 kilometer from Gujarat to Arunachal Pradesh, and its width is 2933 kilometer. So there is a difference of 2 hours in local time between two local stream places, starting from Gujarat west to Arunachal Pradesh in the east due to the longitudinal difference. When it is sunrise in the Arunachal Pradesh, it is still night time in Gujarat. The standard meridian of India is 8230 east longitude, and it passes through 5 states. Its local time accepted the standard time of India. So as you know that कि जो डिफरेंस बिटवीन है कश्मीर टू कन्याकुमारी इट इज़ 3214, इसलिए अरुणाचल प्रदेश में जिस हिसाब से हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करें तो आपको पता ही है कि हमारा जो अर्थ है वो थोड़ा स्लाइट टिल्टेड है, और जिस हिसाब से जो सनराइज़ होता है धीरे धीरे काफ़ी स्टेट्स में बहुत जल्दी होता है, काफ़ी स्टेट्स में थोड़ा का आपको कम दिखेगा, क्योंकि ड्यू टू अ टिल्टेड ऑफ द सन। तो जिस हिसाब से हमारी सेट हो ना सनराइज़ और सनसेट की, उसमें थोड़ा थोड़ा आपको डिफरेंसेस मिलेगा अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स, राइट। कि भाई अरुणाचल प्रदेश में है विथ इज़ 2933 किलोमीटर, दैट इज़ अ डिफरेंस ऑफ 2 आवर इन लोकल टाइम। तो उसमें थोड़ा सा लोकल टाइम में भी क्या है डिफरेंसेस है। दिस इज़ वाई it is east due to the longitudinal difference. When it is sunrise in Arunachal, it is still night in Gujarat. तब आपको दिखता होगा कि हिल स्टेशन के साइड आप सब सनराइज जल्दी होता है ना, तो वेस्ट साइड देखोगे ना तो आपको थोड़ा अभी नाइट जैसा ही दिखेगा दूसरे स्टेट में। वो क्यों? क्योंकि देयर इज़ अ डिफरेंसेस बिटवीन द लॉन्गिट्यूडल टाइम ऑफ ईस्ट टू वेस्ट, दैट्स वाई। Then total area of India is 32.8 lakh square kilometer, and it's rank 7th in the world, that you know. And other 6 countries are Russia, Canada, USA, China, Brazil and Australia. As I told you, India stands 7th in the terms of area in the world, and 6 are Russia, Canada, USA, China, Brazil and Australia. The land of area of India lies in South Asia. In the north, Lufi mountain ranges are spread over hundreds of kilometers from west to east direction. That is why its communicating with Tibet and China is possible only through passes located at high latitude. Bay of Bengal lies to the east, Arabian Sea and Indian Ocean to the south, peninsular Asia, India. The sea is utilized as a waterway through the land routes and obstruct the surrounding mountains. India has accepted all cultural elements arriving from outside. These have merged into Indian society. देखो स्टूडेंट्स, ये जो पूरा चैप्टर है ना वो पूरा का पूरा रिलेटेड लोकेशन, जियोग्राफिकल एंड स्ट्रक्चर के ऊपर है। और इससे भी मैं आपको बताऊँ ना, इफ़ यू विल वॉच द लिटिल बिट वीडियो, यूट्यूब वीडियो ऑफ दिस चैप्टर्स, यू विल गेट द बेटर इन्फॉर्मेशन। क्योंकि इसमें तो सिर्फ क्या है लिखा हुआ ही है कि भाई बे ऑफ बंगाल यहाँ से पास होता है, इतनी माउंटेन्स रेंजेस है, अरेबियन सी वेस्ट टू ईस्ट इंडियन पास होता है, साउथ इंडियन साउथ पेनिसुलर यहाँ पे है, हमारे वाटरवेज इस थ्रू जाते हैं, और पूरा का पूरा आपको इसमें मैप भी दे रखा है कि कहाँ से कौन सा वाटर वेव जाता है, कहाँ से पेनिनसुलर पास होते हैं, कहाँ से क्या कहते हैं कि भाई तिब्बत एंड चाइना का पूरा आपको मैप में दिखाएंगे। देन आफ्टर कहाँ से बे ऑफ बंगाल है, कहाँ पे इंडियन ओशन है, ये सब आपको इसमें मर्ज दिखाएंगे। बट आई एम फ्रैंकली टेल यू, इफ यू वॉच द स्मॉल वीडियो of link of this chapter in the YouTube, you will definitely get very I'm telling you, you will definitely get that know
proper idea of mountain ranges and Indian Ocean and Bay of Bengal. See, हमें क्या था, वो था ना, क्या कहते हैं, हम देखते थे क्या, हमारे पास कौन सा था, that we talk about टॉप स्कोरर. तो उसमें हम पता है एवी रूम में जाके देखते थे ना, तो ये सारे जो चैप्टर्स थे ना वो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि आप लोग लाइव सारी वीडियोस वगैरह देखते थे. अभी देखो इसमें तो इतना पॉसिबल नहीं हो सके. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि ये सब तो सिर्फ लिखा हुआ है, और मैं नॉर्मली भी पढ़ रही हूँ ना, आपको इजीली समझ में आएगा. बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, यू जस्ट वॉच द वीडियो ऑफ दैट, link of that, you will better understand. India holds a strategic location in eastern hemisphere and strategic importance also. India's eastern hemisphere ocean have contributed immensely in developing mutual relations in ancient times. India has had a trade relation with East Africa, West Asia, South Asia, as since ancient times. India developed a cultural and commercial relation with due to her location. No country in Indian Ocean has a long maritime boundary as India has. Due to the strategic location of India is called the Indian Ocean. Location of across the international waterways is also important. The opening of Suez Canal 1869, the distance between India and Europe had reduced by 7,000 kilometers. Sea routes connecting East and Southeast Asia, Australia to Africa, Europe pass through the Indian Ocean. The Circum-African waterway, Suez Canal water passed by India, Canada, USA, and reached through the time waterways via Strait of Malacca and the Pacific Ocean. See students, if you heard about the canals, तो स्वीज कैनाल्स और ये सब कैनाल्स इसके लिए स्वीज कैनाल इसके लिए बना था कि आपको है ना, जो बॉर्डर बहुत बड़ी ओशन से पास करनी हो ना, तो पूरा घूम के जाना पड़े ना, उससे बेटर है कि ये कैनाल्स थ्रू हमारा जो लोकेशन होता है ना, रूट का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, ट्रेडिंग का, वो कम हो जाता है. I don't know, I'm not remember which canal last year in 7th standard मैंने स्टडी करवाया था. I think so it is Suez Canal, but I'm not sure about that. कि from India to Japan, right? No, not from India to Japan. Yeah, but Asia to Japan. नहीं, wait. From Sri Lanka to Asia, canal pass through due to the trading and all that, import export. तो वो पूरा घूम के जाना पड़ता था. तो बीच में यूरोप आए, देन साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, तो पूरा घूम के उनको import export करना पड़ता था. पर ड्यू टू कैनाल, आई थिंक सो इट इज़ स्विस कैनाल, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. उससे क्या हुआ कि श्रीलंका और एशिया दोनों के ऊपर नीचे हो गए. ठीक है, लंका बिल्कुल नीचे आ गया. तो उस थ्रू कैनाल बना. उससे क्या हुआ कि भाई श्रीलंका एंड एशिया के बीच में जो कंट्रीज आए, उनके जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो ट्रेडिंग सिस्टम थी ना, वो उनकी इजी हो गई. क्योंकि एक पूरा कैनाल बन जाए ना, तो आपकी जो चीज़ें आपको इंपोर्ट करनी हो, एक्सपोर्ट करनी हो, और कमर्शियल लोकेशंस वगैरह उस कैनाल थ्रू आपका पूरा इजीली बन जाए ऐसे. तो यस, ये बात है कि भाई कैनाल्स बनते हैं तो हमारे जो सी रूट्स जो लॉन्ग हमें पड़ते हैं ना, दूसरी कंट्रीज से घूम के जाने का, वो धीरे धीरे कट हो जाए. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर राजकोट में एयरपोर्ट खुला, राइट, तो वहाँ से मुंबई टू राजकोट टू मुंबई, इजीली हमें एयरपोर्ट राजकोट में खुला, उससे इजीली हमें फ़्लाइट डायरेक्ट मिल गई. बट पहले राजकोट में एयरपोर्ट नहीं खुला था, तो हमें मुंबई जाना पड़े तो हमें क्या करना पड़ता था, पहले राजकोट से अहमदाबाद जाना पड़े, अहमदाबाद से फ़्लाइट लेनी पड़े, और उसके बाद हम कहाँ पहुँचते थे, मुंबई पहुँचते थे. तो वो क्या हो जाता था, बड़ा रूट हो जाता था.
ऐसे डिस्टेंस क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। फिर जैसे ही हमने राजकोट में एयरपोर्ट खोल दिया तो उसका डिस्टेंस क्या हुआ, कम हो गया और हम डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। ऐसे उसी तरह जैसे कि यहाँ पे हमारा चोटीला साइड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, तो वो बनेगा ना, तो जो जहाँ पे हमें कोई ऐसे स्टेट्स होते हैं जहाँ पे हमें पहले अहमदाबाद जाना पड़े एंड उसके बाद ही हमें कोई भी स्टेट का क्या मिल सकता है कि भाई फ्लाइट मिलता है। पर जैसे ही यहाँ पे हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा तो हमें क्या होगा, इजी होगा जाने का। अभी रूट बढ़ जाता है, फिर रूट कम हो जाएगा। उसी हिसाब से जो ये कैनाल्स होते हैं ना, उसके थ्रू हमारे जो किलोमीटर्स होते हैं ना वो कम हो जाते हैं ट्रेडिंग के, और हमारा जो कम्युनिकेशन होता है अबाउट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वॉट एवर इट इज़ ईजी फॉर अस एंड इट रिड्यूस द किलोमीटर्स ऑल्सो. So, India contacts many countries since many centuries. Goods and ideas are being exchanged since the ancient times. That you know that. Then similarly, concept of Upanishads, stories of Ramayana, Panchtatra, therapeutic methods, Indian numerical figures and decimal systems, etc. could reach many parts of the world. India is an important location in South Asia. There are, here it is mentioned wrong, there are 28 states and now 9 union territories in India. India holds an important place in South Asia. There are again 28 states and national capital territory of Delhi and union territories in India, that you know that. तो इंडिया ने हर एक जगह से, हर एक कंट्री से अपना ही क्या कहते हैं रिलेशन प्रॉपरली रखा है, और हमारी काफ़ी ऐसे गुड आइडियाज़ थॉट्स एक्सचेंज भी हुई है। और क्या कहते हैं, काफ़ी आपने नोट किया हो ना, तो अभी जो महाभारत आता है ना, तो महाभारत पे जो कृष्ण जी जो मॉरल थॉट्स बोलते हैं, तो उसके ऊपर भी काफ़ी अमेरिकन्स जो हैं उसके ऊपर भी पता है सर्च कर रहे हैं कि हु वॉज द कृष्णा, राइट, एंड कौन थे। तो ऑब्वियसली इट इज़ द लॉर्ड कृष्णा, बट स्टिल वो उस पर जो उसके मॉरल थॉट्स होते हैं उनकी बुक्स पढ़ते हैं, और जो उनके गुड वाइब्स है वो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि पॉजिटिविटी लोगों में आए। आजकल लोग क्या होते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं, दे डोंट हैव अ पॉजिटिविटी एनर्जी। और ये सब हमें कहाँ से मिला है, हमारे पूरे पुराने वेदास से मिला है। मेडिटेशन करना, हमें हमारे जो मूल मंत्र होते हैं ये सब इंडियंस में बहुत पुराने हमारे ऋषि मुनि छोड़ के गए हैं। आज फॉरेन कंट्रीज उसको अपना के बैठे हैं, दे गिवन द डिफरेंट डिफरेंट नेम्स ऑफ दिस थिंग्स। कोई ऐसे बोलता है आर्ट ऑफ लिविंग में ज्वाइन हो जाओ, आपको पता हो दैट श्री श्री रविशंकर जी का आते हैं, राइट। कोई इसको रेकी का नाम देता है, कोई इसको क्रिस्टल हिल का नाम देता है। ये सब नेम है डिफरेंट डिफरेंट, बट टू डू मेडिटेट, टू गेट द एनर्जी, ये हमारे पुराने वेदास और ऋषि मुनि छोड़ के ही गए हैं। आप लोगों को पता ही होगा, काफ़ी मुनीस जो ऋषिस होते हैं वो ऊपर ऊपर पहाड़ पे चले जाते थे और काफ़ी टाइम तक मेडिटेशंस वगैरह करते थे। तो वो क्यों करते थे, तो मेडिटेशन करने से आपको मन में शांति मिलती है, अच्छे से थॉट्स आते हैं, एनर्जी मिलती है। तो इंडिया ने ये सारी जो चीज़ें हैं ना, अभी रामायण है, महाभारत है, इस कॉन्सेप्ट को लेके पता है बाहर की कंट्रीज अभी सर्च वगैरह करती रहती है ऐसे कि, और उस पर सर्च करके मेडिटेशन क्या होता है, क्या कृष्णा का गुड थॉट्स होते हैं, वाइब्स होते हैं, उन पे वो काम करके पब्लिक को एनर्जेटिक करते हैं कि भाई देयर इज़ अ गॉड। एंड मेडिटेशन करना या फिर मूल मंत्र के उच्चार करना, उससे मन को सबको बहुत शांति मिलती है। सो इंडिया पहले से ही एशियंट से टाइम से ही, एज वी टॉक अबाउट स्पिरिचुअल और नाउ वी आर टॉक अबाउट गुड आइडियाज़ एंड थॉट्स, पहले से ही एक्सचेंज करती रहती है हर एक चीज़ थ्रू इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज़। बिकॉज इंडिया के पास सिर्फ पैसा दौलत सब कुछ नहीं थी, पर ज्ञान भी बहुत था।
क्यों रामायण है, महाभारत है, ऐसे अच्छे अच्छे जो चीज़ें हैं वो सिर्फ इंडिया में ही हुई? क्यों और कोई कंट्री की कोई ऐसी हिस्ट्री हमने ना सुनी हो? बिकॉज इंडिया के पास स्पिरिचुअलिटी से लेके वेल्थ से लेके सारी तरह से इंडिया के पास सब कुछ है, पर उसका ज्ञान अभी हमें मिल रहा है, राइट? सो स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही रखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे नेबर्स ऑफ इंडिया एंड देन आफ्टर geographical structure. Okay, the two topics are left. Till then, stay home, stay safe, and thank you.